we're basically more interested in what's the difference between the two string rather than how to transform it, because the use cases that we studied in the last class, like spell check or DNA analysis, they are mostly focused on the number of operations that are used to do that. And the 8 operations that we are going to consider are 3 added operations, so insert, number of operations. to substitute or replace. So number of operations. Also computed. And I was saying that in many cases this is more important rather than how we can do it. Okay? As a human we probably can see it, so we are more interested what's the difference for spell check or DNA analysis type of thing. So we take 2 strings. One is called X, and this consists of individual characters that are any number n. So each xi is a character. ठीक हो गया? और similarly y is y1, y2, all the way up till ym. Each yi is a character. And m may be equal to n, that is also possible, or m may not be equal to n. So they can be of different lengths also. So both cases are possible. One can be a cat and the other can be a long word like algorithm. So when we say that we do an insert, we are basically saying we do an insert in X. So we are always doing all the operation in one of the string. So we'll take X as the first string. Okay? And all the operations that we'll do will be done on the first string. You can take it as the string that you have typed on the computer. All the operation will be done on the second string, and we are hoping that in the end we'll get the second string that we are denoting by y. So that's why when I'm saying insert, I'm saying that I insert in the string x, which is our first string, at say position 2, and I insert a character, say a. So this can be example. So this will mean that x1, x2, xn is changed to x1, x2, a, x3, and the sequence continues. जी? 0 से इंडेक्स स्टार्ट करें, पोजीशन 2 तो नेक्स्ट 2 की जगह ये नहीं आना चाहिए। 2 के बाद 2 के बाद 2 के बाद और इसी तरह जब
character, so I can have an x2, and then I can have, so this can be any character in the start or in the beginning, and I want to delete this thing so that there is no x of I. Similarly, when I say substitute, so the string, the position, and the character that I want it to be replaced with. So this, for example, if I say substitute x3 with a character C, this will mean that I am changing into x1, x2, and now C will come, and then the whole sequence will follow. Okay? So we can change one string to another string using these three operations, but the real question is how to do it efficiently. So for example, if one of my string is double A, B, A, B, and I want to change it to Y is equal to B, A, double B. There are a number of ways to do it. So I can do insert. I can do insert x 0 after b xb. at position number 0, okay? And this will give us b a b a b, and then I can do डिलीशन होगी पहले तो अच्छा ठीक है सब्स्टिट्यूट करने or then I can do a delete and delete the second character. So I delete one of the A's and I get x dash is equal to B, A, B, A, B. and then we need to delete this thing. So I can delete 1, 2, 3, 4, delete 4 index, and this will give us the final string B, A, B, B. Okay? So 3 operations में ये काम हम randomly कर सकते हैं, and we can try it another way, and we can also probably do it in 4 way. Some other way we can do it in a number of different operations. One way to do it that I delete everything from here and then retype everything. So that will involve deleting 5 characters, then inserting 4 characters. So that will be 9 edit operations. So there are various possibilities. Okay? So we don't know if this is the optimum or not. ठीक है? 0 से ले रहे 1 से ले रहे हैं। जीरो का मतलब है कि 1 से पहले इंसर्ट कर दो, ठीक है? मतलब ये मेरे पास 1 है तो मैं उससे पहले कर रहा हूँ, ठीक है?
there are many ways to do it. So the question is, what is the minimum cost? So we can spend the next of the class trying out different ways and to find, but we will not waste the time. So I think you can understand that there are many ways, and some may lead to 4 operations, some other may lead to 5 operations. The question is, can we do it in 2 operation or 1 operation? We will need some operation, obviously, because there are 2 different strings. अच्छा जी, तो the algorithm का जो outline है, वो कुछ इस तरीके से है कि मेरे पास x1, x2, xn है, और मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ y1, y2, ym से। तो जिस तरह वेटेड इंटरवल स्केजुलिंग में we started from the last interval, ठीक है, and then we were reducing the problem. Similarly, if these 2 characters are different, what we can do it is that we can insert another similar character ym at end of x, ठीक है, और उस केस में x1, x2, xn आ गया मेरे पास और ym आ गया, और now I need to match x1, x2, xn to y1 से लेकर ym -1। तो जो प्रॉब्लम साइज है वो थोड़ा सा मेरा रिड्यूस हो गया। एक साइड से मैंने एक कैरेक्टर मैच कर लिया, तो वहां से अब मुझे कम उसको कंसिडर करने की जरूरत है, ठीक है। कंप्यूटर है उसको वो पैटर्न नजर नहीं आ रहा, वो सारे कैरेक्टर्स नजर नहीं आ रहे, वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उसको नजर आ रहा है, वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डिसीजन मेकिंग कर सकता है, ठीक है। तो अगर मैं इंसर्ट करता हूँ तो मेरे पास ये ऑपरेशन आता है। मैं यही काम जो है ये डिलीट के जरिए कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, तो डिलीट मैं xn से करूंगा, तो मैं x1 से मेरे पास xn -1 आ जाएगा, और now जो प्रॉब्लम है वो मेरे पास है कि मैच करें y1 से xn -1 to y1 और similarly I can do substitute. So substitute में मैं x1, x2 से xn -1 xn को मैं x1, x2, xn -1 ym के साथ मैच कर देता हूँ, तो दोनों मेरे पास आखिरी मेरे पास कैरेक्टर्स मैच हो जाते हैं। और now जो है मेरे पास जो प्रॉब्लम है वो मैच x1, x2, तो ये दोनों साइड से मेरे पास श्रिंक हो गया। तो द लेसन दैट आई, ये जो 3 चीजें मैंने लिखी हुई हैं, इससे जो चीज मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ कि इन ऑल 3 प्रॉब्लम्स
we are reducing the size of the problem. We are going to using a top-down approach, okay? Top to bottom approach, or we are reducing the size of the problem in each case, sometimes in both the strings and sometimes in one of the string. Okay? There is a fourth possibility also. What is that? फोर्थ ऑप्शन मेरे पास एक रह गई है. इस केस में we are assuming that xn is not equal to ym. ठीक है? तो ym is not equal to x of n. ये जरूरी तो नहीं है ना, आखिर में मेरे पास z और z भी आ सकता है. तो अगर मेरे पास ऐसी सिचुएशन होगी, तो अगर x1 is equal x of n is equal to y of m, then I need to match x1, x2 minus 1 to y1, y2, ym minus 1, और मेरे पास ये 0 कॉस्ट के ऊपर ये काम हो रहा होगा. I don't know where this thing is. सर ये इंसर्ट जब हमने पहले किया है ym को, तो उसके बाद हम मैच क्या करना चाह रहे हैं? ये सेकंड स्टेप डिलीट से पहले. तो ये फर्स्ट जो है स्टेप, तो मैं I'm just inserting a y of m over here. So the objective is that I am matching the last character. ठीक है? उस केस में मेरे पास लास्ट कैरेक्टर मैच हो जाता है, तो मेरे पास इस वाले पार्ट को मैंने इस वाले स्ट्रिंग के साथ मैच करना है, क्योंकि स्ट्रिंग 2 में मेरे पास एक कैरेक्टर मैच हो चुका है. सर मैचिंग की बात हम क्यों कर रहे हैं? कन्वर्जन क्यों ना करें? मेरा सवाल है क्यों ना करें? कन्वर्ट कर रहे हैं. हमने एप्लीकेशंस पढ़ी ना, तो उन सिनेरियोस मतलब कर ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? तो स्ट्रिंग 1 को String स्ट्रिंग 2 से कन्वर्ट करना है. एक और तरीका इसका कहने का ये है कि स्ट्रिंग 1 मैचेस स्ट्रिंग 2 एट अ मोर डिटेल्ड लेवल. Every character of string 1 matches with every character of string 2. ठीक है? So it means they both have the same length and each and every character exactly matches. ठीक है? So that's the whole objective. I'm changing cat into bat or algorithm into altruistic or something. So उसमें मुझे कुछ changes तो करनी है, और stop में कब होंगे? जब वो 100% मैच हो जाएंगे और मुझे पता लग जाएगा कि वो मैच हो गया. जी सर. और सर ये जो आपने सीक्वेंस लिखी है x1 से xm तक और y1 से ym, कौन से किधर बात कर रहे हैं? सर ये डिलीट से पहले ये जो लाइन. So I need to match. So the ym is not needed to be matched now. ठीक है? So there was a ym, but that is now matched with a ym that is over here in string 1. Okay, let me give you an example. Okay. So cat and dog. ठीक है? तो अब
एक ऑपरेशन मैं कर सकता हूँ कि मैं कैट के साथ मैं डॉग जी लिख देता हूँ, ठीक है। तो आखिरी कैरेक्टर मेरे पास मैच हो गया। अब इस पार्ट को मैंने मैच करना है इस वाले पार्ट के साथ, क्योंकि मेरे पास जी जो है वो मेरे पास मैच हो गया। तो आई एम रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? So, इंसर्ट डिलीट और सब्स्टिट्यूट ये m इज इक्वल टू n होगा ना, या लास्ट एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू ये जो सर आपने This one. Yes. Why? I'm talking about the last character only. So these strings, okay, these two strings are different anyway. So ठीक है, first of all, but we don't know कि वो last में मेरे पास हो सकते हैं G and G आ रहे इसको हो। हम फिर हाँ, शॉर्ट करते जाएंगे। short करते जाते हैं। If the last characters are matching, so we don't have a cost in terms of an edit operation, and we reduce both the strings. ठीक है? So the work that we need to be done is reduce in string 1 as well as string 2. Any other question? so ये जो डिलीट में x1 to xn-1 कर रहे हैं, n-1, ये हम सारे प्रीवियस स्ट्रिंग्स डिलीट कर रहे हैं वन बाय वन। No. So Okay. By saying that I'll delete, I don't mean that I will delete this whole string. ठीक है? So there can be 10 operations that I do. An insert, a delete, a substitute, a no change. ठीक है? तो different operations मैं कर सकता हूँ मुख्तलिफ टाइमों पर। सवाल ये कि मैं कौन से operations करूँ तो मैं कम काम करूँगा। मैं एक लेजी टाइपर हूँ, ठीक है? तो मैं टाइपिंग कम करना चाहता हूँ, ठीक है? तो ये delete is just one of the many operations that I do, ठीक है? I can delete and then insert something. So it's just one of the many operations I'll do. In order to change one string to another, in general we'll have a few insert operation, a few replace operation, a few delete operation, and a few character will be matching. Anything else? Crystal clear? सर इसकी जीरो कॉस्ट Since okay, ऑपरेशंस की टर्म्स में operations की terms में operations. So Not for the zero cost in terms obviously we are not like worried about number of rupees or number of dollars. So cost in over here is the number of added operations that we do. अगर वो बराबर है तो कुछ भी नहीं मिलता, यानी कि आपने कोई भी डिलीट इंसर्ट और सब्स्टिट्यूट में से कुछ नहीं लगाया, बस वो वहाँ से दोनों रिड्यूस मैच नहीं करता, इंडेक्स सॉल्यूशन। अच्छा जी, तो the recursive algorithm, if you do it top bottom way, the recursion tree in general will have how many branches at each level at the most. So we have 3 edit operation and 1 branch is that there is no change. So there can be 4. So it is a tree with possibly 4 For each. branches in every case. So if we are searching from top to bottom, we are essentially talking about 4 raised to power n. So again we have a exponential time algorithm. So I won't go into detail, but I hope that you understand what I mean. Okay? We are writing the program top to bottom in a recursive fashion. So the recursion tree will have
4 branches because at each stage there is at least 3 operations. The 4th branch, okay, we can say that that branch will occasionally be activated, but it will have 3 branches. Okay? Because there is an insert, we always have a possibility to insert at the end or delete at the end or substitute the last character. सर वर्स्ट केस में सर 4 ऑपरेशंस हो रहे होंगे। हाँ जी। बेस्ट केस में सर हमारा 9 को चला। लेकिन जब हम सर्च कर रहे होंगे तो वी डोंट नो कि बेस्ट हमारा क्या है, तो वी वोंट नो। सर्च तो सारा करना पड़ेगा। सर्च तो क्या रहा सकता, इटरेशन तो चली होगी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट हाँ, in terms of the actual editing that will not be happening, but searching तो उसको सारी करनी पड़ेगी ना, ठीक है? So we are talking about the searching, जी। इस एल्गोरिथम को डिवाइड एंड कॉन्कर से कर सकते हैं, स्ट्रिंग को हाफ करते हैं। नहीं, क्योंकि वो नीट क्लीन हमारे पास उस तरह से नहीं बनता, ठीक है? अच्छा जी, तो इसकी मेमोरी जो है, so we know that, sorry, just a second, a sneeze just got stuck in my nose. अच्छा, तो इसका डायनामिक प्रोग्रामिंग हम यूज करेंगे, और डायनामिक प्रोग्रामिंग में वी ऑलवेज नीड some memory. So we need a memory that we call, say, M. Will it be a one-dimensional array, a two-dimensional array, or a three-dimensional array? This extra memory that we will be using. One-dimensional. So we will have a string 1. Actually, we'll have a two-dimensional array. दो strings है मेरे पास. So over here I will have string 1 and उसके मुख्तलिफ characters मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे. And over here I will have a string 2 और उसके different characters मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे. अब अगेन जिस तरह मैं मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में कर रहा था, तो एवरी एंट्री करस्पॉन्ड्स टू अ सब स्ट्रिंग गेटिंग मैच टू अ सब स्ट्रिंग, ठीक है? सो वी आर ऑल द टाइम having sub problems and not just neat clean 2 sub problems. It has many different problems that we are looking at simultaneously. In divide and conquer, we'll have 2 problem or 3. We'll always divide it into 2. Over here, we are kind of looking at every possibility. Okay? So coming back to the same. What was the string that we were trying to match? X of n. A A B A Original. B A A. So X is A A B A B. Y is B A B B. So this is our first string. तो ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा. A A B A B और सर 2D अरे के लिए तो सर वो एलिमेंट का साइज दोनों जो स्ट्रिंग उनका सेम ही होना चाहिए. 2D अरे मेरे पास 2 डायमेंशनल 3 भी हो सकती है, 3 डायमेंशनल 25 भी हो सकती है. थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है? मैट्रिक्स तो होती है ना, आपने मतलब 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया होगा, कोई असाइनमेंट आपके किसी टीचर ने दी होगी किसी वक्त में, ठीक है? तो वो 2 मैट्रिसेस में तो डिफरेंट साइज के मैट्रिसेस हो सकते हैं.
तो ये मेरे पास आ गया और मेरे पास यहाँ पर कुछ स्पेशल चीजें हैं। नल स्ट्रिंग। हाँ जी, नल स्ट्रिंग के लिए मेरे पास एक जगह मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि नल स्ट्रिंग भी मेरे पास आएगा। तो मेरे पास ये नल स्ट्रिंग और यहाँ पर नल स्ट्रिंग है, ठीक है। बेस केसेस की तरह इसमें दोनों स्ट्रिंग नल है। एक्चुअली मेरे पास कई बेस केसेस है। सर जो वर्ड मैच का जो दोनों मैच दोनों स्ट्रिंग अगर नल होंगी तो वो कॉस्ट 0 होगा। ये भी मेरे पास, अब मैं जो हूँ थोड़ा सा इसमें लिख रहा हूँ, इस कलर में लिख रहा हूँ, ये मैं बेस केसेस को बता रहा हूँ। तो 0 कॉस्ट होगी अगर ए को मैंने नल में चेंज करना हो, आई नीड 1 डिलीट ऑपरेशन। अगर ए को मैंने नल में चेंज करना हो तो आई नीड 2 डिलीट ऑपरेशन। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मैं ए को चेंज कर रहा हूँ इनटू अ नल स्ट्रिंग। 2 डिलीट तो ऑपरेशन। जब भी मैं किसी एक को करता हूँ तो वो मेरे पास ये वाली सब स्ट्रिंग को चेंज कर रहा होता हूँ मैं इस वाली सब स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। Same 3, 4, 5, ठीक है। Over here I'm changing null string into B, one operation, null string into BA, 2 operation, null string into BA, BB, 3. So I'm just typing. So these are the base cases, ठीक है, क्योंकि ये हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। This is just deleting and that's just inserting, ठीक है। And the reason being is that I'm changing a null string into a substring, ठीक है। तो जितने substring में characters होंगे उसमें मुझे insert करने पड़ेंगे। तो बाकी सारे में तो सिर्फ सब्स्टिट्यूट ही होगा। तीन हमारे पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन So similar हमारे पास हैं। so similar string आ गई तो do हमारे nothing। पास इस पॉइंट को या किसी भी इस अरे में किसी भी पॉइंट को कैलकुलेट करने में के लिए मैं अगर इंसर्ट करता हूं तो इंसर्ट करने से मेरा y में जो है वो एक कैरेक्टर कम हो जाता है, ठीक है। तो मैं बेसिकली y में एक कैरेक्टर कम हो जाता है तो वो इधर आ जाता है, मतलब मेरे पास छोटा हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इंसर्ट करता हूं तो मैं a में x में एक कैरेक्टर ऐड कर रहा हूं तो वो ऊपर वाला आएगा। अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं या वो नो चेंज है तो वो मेरा डायगोनल साइड से वैल्यू आएगी, ठीक है। तो मेरे पास ये 3 ऑप्शन है। इंसर्ट के केस में मैं बैकवर्ड से वैल्यू लूंगा। ओके, लेट मी जस्ट गो बैक अ बिट। सो इंसर्ट के केस में मैं बैकवर्ड जाऊंगा यूं करके, क्योंकि मैं कॉलम को कम कर रहा हूं, ठीक है ना। इमेजिन करें मैं कॉलम को कम कर रहा हूं। डिलीट के केस में मैं आखिरी नंबर को डिलीट कर रहा हूं रो कम होगी तो मेरे पास रो कम हो रही है, तो मैं ऊपर की तरफ से वैल्यू ले रहूंगा, ठीक है। और +1 मेरे पास उसकी एडिट कॉस्ट आ जाएगी, एडिट मतलब वो कॉस्ट आ जाएगी। सब्स्टिट्यूट के केस में डायगोनल और कॉलम और रो बोथ आर चेंजिंग एंड देयर इज अ कॉस्ट ऑफ 1, ठीक है। और अगर नो चेंज होगा डायगोनल से ही आएगी वैल्यू, लेकिन विद अ कॉस्ट ऑफ 0। So let's just now do it. So I'll
I'll just fill in a few rows. ठीक है? तो A को I have to change to B. ठीक है? अगर मैं यहाँ से वैल्यू दूं 2 आती है, यहाँ से लूं 2 आती है, तो मैं ये रिपीट नहीं करूंगा कि इंसर्ट कहाँ से हो रहा है, डिलीट किधर से हो रहा है, वो आप खुद कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ से आता है तो मैं 1 ले लूंगा। तो इनमें से मैं मिनिमम कॉस्ट लूंगा क्योंकि मैं मिनिमम एडेड डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा और मेरे जो किस रास्ते से आया हूँ, मैं इस रास्ते से आया हूँ। इधर जो है तो मैं रो बाय रो इसको फिल कर रहा हूँ। तो जब मैं इसको फिल कर रहा हूँ, I can do this thing, so I'll get a value of 2. I can get this thing, I will get a value of 3. I can get this thing, I'll get a cost of 2. ठीक है? So this is changing A into B of A. So अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, इनमें से कोई भी मैं चूज कर सकता हूँ। ठीक है? So the minimum cost will be 2 और जो डायरेक्शन है वो मैं, आपकी मर्जी है कहाँ से लेना चाहते हैं, लेकिन मैं चले यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है? ये मैं क्यों एरो लगा रहा हूँ, ये जिस तरह मैं ऑप्टिमम स्प्लिट के लिए वो नोट कर रहा था ना, तो इसी तरह मैं किसी और अरे में मैं नोट कर रहा हूँ कि ऑप्टिमम वैल्यू कहाँ से आई है, क्योंकि वो हर सब स्ट्रिंग का हर पॉसिबल सब स्ट्रिंग के साथ वो आंसर कैलकुलेट कर देता। ठीक है? यहाँ पर मुझे बताएं क्या वैल्यू आएगी। अब A और B डिफरेंट है, तो मुझे कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट 0 के साथ नहीं हो सकता। ठीक है? तो मैं या वो 3 आएगा या 3 आएगा या वो 4 आएगा, तो वो मैं 3 वाली ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ। 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 + 1 4। इस केस में मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, तो ये मेरे पास A है, ये 4 है, ये बराबर नहीं है, तो I can do this, I can do this, I can do this. I'll get 5 or 4 or 4, so I'll pick the 4 one और मैं कहता हूँ कि ये यहाँ से आया। एक आखिरी करते हैं, एक आखिरी रो करते हैं। इसका आप मुझे बताएंगे। 2 आगे 2 आएगी, दोबारा 2 या 3 का ऑप्शन नहीं है मेरे पास, क्योंकि मिनिमम वाला चूज करना है और वो मेरे पास फ्रॉम द डायगोनल आ रहा है। और इस केस में क्या है, अब A और A सेम है, तो द लास्ट कैरेक्टर्स ऑफ द 2 सबस्ट्रिंग्स आर मैचिंग विद ईच अदर। ठीक है? तो आई कैन जस्ट डू, there is a 0 cost and the total cost is 1. The same cost is copied over here. ठीक है? So then B and A are different. So I have 2 options. So there can be a 2 or a 3 or a 4. 2 हम pick, ठीक है। So I'll pick the 2 option और वो इधर से आ रहा है। ठीक है? और इस केस में मेरे पास क्या आएगा, 3 4 5। So I'll pick the 3 और वो मेरे पास यूं करके आ जाएगा और यूं करके मैं फिल करूंगा, and each entry is telling me the minimum added distance for a specific string. So this particular, let's pick an entry and then we can kind of end the class. So this particular entry is telling me cost to convert A to
DA। ठीक है, तो इस तरह हर जो सेल है वो जो मेरे पास कॉलम में स्ट्रिंग बन रही है और जो मेरे पास रो से स्ट्रिंग बन रही है, तो वो ये वाली स्ट्रिंग को ऊपर वाली स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कॉस्ट दे रहा है। तो जो टोटल कॉस्ट है, जो ओवरऑल पूरी की पूरी स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग में चेंज करना था, उसका आंसर किधर आएगा? एंड से मतलब है यहाँ पर। वेरी गुड। तो फाइनल आंसर विल कम हियर। So yeah, I think you guys are tired now. सर ये कन्वर्जन की थोड़ी समझ नहीं आई कि ये मतलब कॉलम से रो में कन्वर्जन किस तरह हुई है, और ये जो आपने एरोस लगाए हैं जो हाईलाइट किया वो सर वो इस तरह कर दें सर जी, वो इंसर्ट डिलीट से हैं एक और रो कर देते हैं। सर, वो ऑपरेशन से ज़रा कर दें काइंडली, सारी समझ आ जाएगी सर। और एक रो सिर्फ ऑपरेशन से कर दें, बाकी समझ आ जाएगी सारी। अच्छा जी, उससे ऊपर वाली का बताओ, पहली रो का बताओ जिसके अंदर यहाँ टू आ रहा है, यहाँ टू आ रहा नहीं, हाँ ये हाँ ये यहाँ टू आ रहा है, सेम था। ये जो खाना है ना, इसमें हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि AAB को मैं B में चेंज कर रहा हूँ। AAB कहाँ से आया? AAB यहाँ से आया। B कहाँ से आया? क्योंकि ये इसके करस्पॉन्डिंग B है। ठीक है, अब इसकी कॉस्ट क्या हो सकती है? या तो मैं इंसर्ट करूंगा, ठीक है, इंसर्ट करने में मैं ऊपर से जाऊंगा ना, इंसर्ट में मैं नहीं, इंसर्ट में मेरे पास ये AAB तो उधर ही रहेगा। मैंने आखिर में कैरेक्टर डाल दिया, ऊपर सेकंड स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर मेरा कम हो गया जो कि मैच मैंने करना है। ठीक है, तो इंसर्ट की वजह से मेरा एक कॉस्ट 1 ऑपरेशन ऐड हुआ है प्लस द कॉस्ट ऑफ दिस 3। ठीक है, तो ये 2 + 1 = 3 आ जाता है। डिलीट की वजह से तो उसके यहाँ पे लिखना 3 + 1 = 4 कॉस्ट आएगा, क्योंकि AAB को B में चेंज करने के लिए थ्रू डिलीशन आई नीड टू डिलीट these 2 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये एसेंशियली मेरे पास 4 आ जाता है, और मेरे पास जो है ये 3 आ जाएगा। तो एक और जो है वो मेरे पास 3 आ जाएगा। तो इनमें से मैं मिनिमम वाला पिक कर देता हूँ। ठीक है, नहीं, लास्ट वाले अगर मैच हो रहे होते तो मैं इसमें 2 + 1 ना करता, मैं 2 को ही डायरेक्ट ले आता। ऊपर से डायरेक्ट नीचे तब लिखते हैं जब हमें क्या करना होता है। मैं समझा नहीं आपका सवाल। अभी सर ने क्या किया? हाँ, ये XN है, ये YM है। लेंथ इक्वल नहीं है। अच्छा, हाँ सही है, ये तो B है मेरे पास। सही है। तो ये तो वो वाला ऑप्शन है, ये 2 वाला ऑप्शन है। थैंक यू। मैं 2 + 0 मेरे पास ऑप्शन आ जाता है।
अब मेरे पास बी और ए को मैं बराबर कर रहा हूँ ए बी के, तो इस केस में मेरे पास आखिरी कैरेक्टर्स मेरे पास मैच नहीं कर रहे, ठीक है, तो मुझे वो लास्ट वाली ऑप्शन मेरे पास नहीं लगेगी। तो या तो वो 1+1 होगा, या 2+1 होगा, या 2+1 होगा, तो या 3 होगा, या 3 होगा, या 2 होगा। तो मैं कौन सा लूंगा? 2। क्यों लूंगा 2? क्योंकि वो मिनिमम वाला है। इसी तरह जब मैं इधर आता हूँ तो अगेन मेरे पास बी और बी आपस में मैच कर रहा है, तो वो नो ऑपरेशन वाली ऑप्शन हम लेंगे, तो मेरे पास ऊपर से आ जाएगा, यानी डायगोनली आ जाएगा, और फिर मेरे पास बी और बी मेरे पास बराबर है, और मेरे पास फोर्थ वाली ऑप्शन आ जाएगी, यानी मैं ये वाली ऑप्शन मैं ले लेता हूँ। आपको देखो ना, उसमें भी उन्होंने मैच किया है, मैच करके देखा इसको बाकी समझ। तो इस एग्जाम्पल को तो अगले लेक्चर में फिर जरा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है? ठीक है। और फिलहाल के लिए मेरे ख्याल में इतना काफी है। ठीक है जी, थैंक यू।